and welcome to YouTube channel Finastro Cycles by Nitin Bhandari. Wish you all a very happy Diwali and a very prosperous, peaceful, healthy, happy new year. So we start this update on the weekly charts. So uh, हर वीक हम एक ये पूरा वीक का एक चार्ट बनाते हैं और वो अपडेट करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन द वीकली टाइम फ्रेम में सारे स्टॉक्स में क्या हो रहा है. तो वी स्टार्ट विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. सो दिस इज अ बैंक निफ्टी कैश weekly, and we'll start with this. Let me change the font. So this goes here. Okay. So this is a cash bank nifty. We start with this, and now here I'll draw a GAN fan from top and bottom both, and we'll compare the GAN fan from the. So we'll take the largest cycle for the GAN fan from the top and bottom. I look at the GAN fans only on the weekly time frame and maybe daily time frame, but it is you have to adjust every day. So this is a two ways to draw a GAN fan. One is from the bottom. So this is a bottom, long-term bottom, which is from 2022. This is a long-term cycle and angles. And there is another GAN fan. I'll draw it from here and see if there is something is happening here. So here there is interesting thing which is happening. Why I took this high instead of this low? Because this is a one thing. This is a 90 degree. This is a one thing. It's a 180 degree. If you see, this is a 180 degree. 180 degrees above and 180 degrees below. So there are two sides of looking at the GAN fan. So this GAN fan starting from here, there are minor cycles. So here it got the resistance. Again here it got the resistance and sold off. And now we have to watch as the time passes that this line here, how does it behave? That will be very important. So for next week, the full of next week, these are two levels. ये दो level ध्यान रखना है. 38,335 on the downside and 40,270 on the upside. ये बैंक निफ्टी के कैश के लेवल है to decide the cycle. Now we'll see the bank nifty normal chart with the technical indicators and all that. So I think Bank Nifty, this is a normal chart, and this is again a weekly chart here, and it has all the technical indicators as well as uh, our our planetary lines and all those stuff. So now let me put the my template here and see how does it looks. So though these lines look very cluttered and it may give you a confused view what line to see, when to see. So let's make it a bigger one. And here it is automated engulfing patterns of the candlestick which engulfs the previous move. So here, this down move was an engulfing move, and it has engulfed one, two, and little bit of this, this move. So if I draw a monthly candle, so it has also penetrated the last month's bull move, not very deeply, but it has slightly penetrated. So what is now? So this line is a quarterly line. This line here is a quarterly resistance, not monthly. Monthly हम लोग डेली चार्ट में देखते हैं, ये वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का. सो एक क्वार्टरली रेजिस्टेंस के ऊपर जाके मार्स प्राइस लाइन से यूरानस प्राइस लाइन से दोनों जगह से रेजिस्टेंस लेके अगेन इट हैज केम ऑफ. Now this is a small candle because last week was a very truncated week दो सिर्फ 3 दिन ट्रेडिंग था, बाकी हॉलीडे था. दिवाली मुहूर्त की ट्रेडिंग को आई डोंट कंसिडर इट. So what is looking here? The weekly chart is looking a little bit of stressed. यहाँ पर भी stochastics have curled down. Stochastics नीचे आ गया है. So there is a possibility that this market also may try to uh, go down, which is a bank nifty. Bank nifty also may come down. ये कितना नीचे आ सकता है? So this is a monthly line and this is a quarterly midpoint balance. So ये monthly line जो है इस coming week के लिए 36,790 है, काफी दूर है. It is almost 2,000 point.
उसके पहले यू विल फाइंड अ मार्स प्राइस लाइन जो कि 38,200 है, दैट विल बी द इंपॉर्टेंट जोन टू वॉच फॉर इट. Is this also topped out? If we consider that Nifty has topped out on the day when we consider the Nifty chart, then we can see that ये भी टॉप आउट हो गया. लेकिन एक ही चीज है जो कि पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए कि बैंक निफ्टी पहले अंडर परफॉर्म कर रही थी, नाउ इट इज बैलेंसिंग आउट. तो निफ्टी जितना गिरेगा उतना बैंक निफ्टी मे नॉट बी फॉलिंग, उतना बैंक निफ्टी नहीं फॉल कर सकता. दैट इज अ पॉसिबिलिटी. ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, इट इज पॉसिबल, इट कैन फॉल, बट ये आपको देखना पड़ेगा कि हाउ इट बिहेव्स एंड हाउ इट गोज ऑन द डेली चार्ट्स. सो वीकली में थोड़ा टेक्निकल डैमेज है, ये कैंडल बहुत खराब है, ये इनसाइड कैंडल है. नेक्स्ट वीक के लिए हाउ यू ट्रेड इट, लुक एट द कैंडल्स लो एंड कैंडल्स हाई. दो इट इज अ नॉट नॉन low volume candle, but still the high and low of such candle are important. तो इसका लो अगर तोड़ता है तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट विल गो डाउन. हाई तोड़ता है तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट विल गो अप. हाई जो है 40 से 160 40,160 है एंड लो इज 39,121. सो ये आपको बैंक निफ्टी के लिए देखना है. Now we'll go to the Nifty. So this is a Gann fan in Nifty and look at it. Here already the damage is done from this high starting from here. If I draw another Gann fan, एक और Gann fan मैं यहाँ low point से longer cycle देखने के लिए लगाता हूँ. तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर आके ये previous support मिला था. अभी ये अगले वीक के लिए the level is 17,580 और पिछला इसके पहले वाले वीक का लो था 613. So 17,580 you have to watch for next week for a big move. These are the bigger cycle. ये weekly है तो ये बड़ा cycle है. But from the high, what Ganfan has done, it has broken this high. So ये थोड़ा damage हो गया है. Now we'll go to the normal hour technical thing. So ये जो है कैश बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है. नाउ सी यहाँ क्या हुआ है. अगेन सॉरी यस, सो ये वीकली चार्ट है. अभी यहाँ पर देखिए व्हाट इज द पैटर्न हियर. ये पैटर्न ऐसा है कि इट हैज पेनिट्रेटेड. ये जो है मंथली लाइन है. इस मंथली लाइन के ऊपर नहीं सॉरी ये क्वार्टरली लाइन है, 3 मंथली लाइन है. और ये लाइन के ऊपर जाके यूरानस लाइन पे फेल होके वापस नीचे आ गया है. नाउ सिस्टम इज सजेस्टिंग ये काफी समय से ओवरबॉट था. लुक एट दिस. ये यहां से विच इज जून फर्स्ट वीक से लगा के लास्ट वीक ऑफ सितंबर तक ओवरबॉट, कंटिन्यूअसली ओवरबॉट था. ये एक लेसन है दैट मार्केट कैन रिमेन ओवरबॉट फॉर लॉन्गर देन यू स्टे सॉल्वेंट. कहने का मतलब ये है कि मार्केट ओवरबॉट और इरेशनल बहुत लंबे समय तक रह सकता है. आपके पैसे खत्म होने से भी ज्यादा समय तक रह सकता है. तो ओवरबॉट कभी भी ये नहीं होता है कि शॉर्ट कर दें ओवरबॉट देखा तो. बी केयरफुल, अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी एंड अंडरस्टैंड द रियल इंप्लीकेशंस कि ओवरबॉट का मतलब क्या होता है. अभी पहली बार मार्केट इज गिवन अ सिग्नल कि इट वांट्स टू गो लोअर. अभी हम यहाँ देखते हैं तो ये जो महीना चल रहा है, दिस मंथ विच इज गोइंग ऑन, सॉरी दिस क्वार्टर विच इज गोइंग ऑन, क्योंकि ये क्वार्टरली है. सो ये मंथली है और ये मंथली था. और अब अगर इसको मंथली मंथली को हटा देता हूं मैं और क्वार्टरली डालता हूं, सो लास्ट क्वार्टर का हाई जो था 17,958 था. कीप दिस लेवल इन माइंड. 17,958 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. 17,950, सॉरी नॉट 958, 947, 958. So 17,950 is very important because this is a whole quarter's high. Now, if I remove this and see monthly, so watch for this low here 17,566. अगर ये low गया, so then this whole month can be down and maybe this bearish move 2-3 महीने तक मंदी का move बन सकता है. This is a possibility on the Nifty. What happens कि ये व्यू नेगेट कैसे होगा. दिस इज अ फर्स्ट वीक, छोटा वीक था. देयर इज नो हॉलीडे, नो मच, नॉट मच ट्रेडिंग, नॉट मच वॉल्यूम. पूरा वीक हॉलीडे का था. इसका रेंज भी बहुत कम है. तो वॉच हाई एंड लो ऑफ दिस कैंडल, जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में देखा सेम वे. 18,012 और 17,000
697, 17,697. So keep it 17,697 and 17, 18,012. But if you remember my charts on the daily update, there is a one Lakshman Rekha, which is a biggest one of all on the Nifty futures. That level is 18,088, 18088. 18,088. This level is very, very important, very strong number. Keep in mind for any upside or a resistance. क्या होता है इस महीने में? द मंथ विल गो ऑन, बट ये इस वीक का अगर हम देखेंगे तो लेवल इज कमिंग 17,182. दिस इज अ व्हाट लाइन? दिस इज योर मंथली लेवल. दिस इज योर मंथली लेवल, दिस इज योर क्वार्टरली लेवल. क्योंकि हम जब डेली चार्ट देखते हैं तो ये मंथली हो जाता है और ये वीकली हो जाता है. तो ये लाइन छोटा पीरियड की है, ये लाइन बड़ा पीरियड की है. सो कीप दिस इन माइंड. सो वी हैव टू सी हाउ इट अनफोल्ड्स, बट लुक्स लाइक कि थोड़ा डैमेज इसमें भी हो चुका है ऑलरेडी. नाउ द heavyweights, we start with the HDFC. So HDFC में you can see here there is a GAN fan. अब अगर इस ब्यूटी देखिए, गैन फैन में क्यों आपको बार बार ड्रॉ करना पड़ता है. अभी इस गैन फैन को देखेंगे तो यहाँ पर ये सपोर्ट दे रहा है एचडीएफसी को. यहाँ पर ऊपर यूरानस लाइन सपोर्ट दे रही है, रेजिस्टेंस दे रही है. यहाँ पर ये क्वार्टरली लाइन रेजिस्टेंस दे रही है. तो ओवरऑल अगर इन तीन पैरामीटर को देखें तो ऐसा लगता है एचडीएफसी बैंक नीचे आने की कोशिश में है. ये यहाँ पर इसका डबल टॉप है 2896. परसों का क्लोज 2899 है. वी हैव टू सी हाउ इट अनफोल्ड्स फ्रॉम हियर. अगर ये यूरानस लाइन जो है ब्रेकआउट लाइन भी कहलाती है. इफ इट ब्रेक्स अप देन देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी टू मूव 3100 एंड मे बी 3290. Stochastics कह रहे हैं कि there is a possibility on the upside, but keep an eye on these levels which are very important. That is the 2795 on the downside. If you ask me कि individually कैसी है these candles, ये कैंडल इनसाइड कैंडल है, ये कैंडल बेरिश कैंडल है. अगर इस पूरे जोन में मैं देखूं तो ज्यादातर कैंडल डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल्स है. सो देयर इज अ चेंज ऑफ हैंड in this stock. So look at it, who has bought and who has sold. If यहाँ पर weak hands ने buy किया at this high price, there is a definite possibility it will go down. So on the weekly, right now there is no clarity. We'll see how it behaves on 29, 25. That is the Uranus line for the weekly. So keep this in mind. This is HDFC Bank. Now look at, this is a Mars price line here. क्या किया है? Mars price line has not letting it go up. It is not letting it go up. ये बार बार यहाँ पर resistance है. ये क्वार्टरली लाइन है, इसके ऊपर भी नहीं जा रहा है. एंड नाउ इट लुक्स लाइक इट हैज गॉन बिलो 1620. दैट इज अ इट्स ओन वीकली लाइन 1620. जब हम कैश निफ्टी देख कैश फ्यूचर्स का डेली एनालिसिस करेंगे तो एचडीएफसी बैंक में ये लाइन डेली चार्ट पे, ये लाइन हमको 1625 वीकली लाइन दिखेगी. आई शो यू व्हेन वी डू इट डेली एनालिसिस. तो फॉर राइट नाउ इट शुड होल्ड दिस 1540, 1545, 1550 लेवल. नहीं तो इसको बड़ा ट्रबल हो जाएगा. सो वॉच द लो ऑफ 1575 फॉर होल ऑफ नेक्स्ट वीक. स्टोकेस्टिक्स आर सजेस्टिंग कि ये नीचे जाने की कोशिश में है. But once it regains level above 1650, I think it will again shoot up. Unilever, what is this beautiful chart? Look at this red line here. ये red line Mars line है. It is holding a exact support at this line and it has bounced off. This has given a green candle. But यहाँ पर stochastics are already entered into, they have already entered into ओवरसोल्ड जोन, बेरिश है. इट डजंट मीन, पीछे भी देखिए, इट हैज टर्न्ड अप फ्रॉम दीज लेवल्स ओनली एवरी टाइम. इट हैज नेवर गॉन बिलो 20. सो दिस शोज दिस स्टॉक इज स्ट्रांग. ये बुलिश दिख रहा है, इसका बुलिश ट्रेंड 2375 के नीचे खराब हो जाएगा. बट राइट नाउ इट लुक्स बुलिश. आईसीआईसीआई बैंक, ये जो है आपका आईसीआईसीआई का, ये लास्ट वीक का कैंडल था, ह्यूज कैंडल. इट वेंट ऑल द वे टू 867 ऑन द रिजल्ट्स. It got sold off now and now it is again
ये क्वार्टरली लाइन के ऊपर है, तो इसके नीचे आया तो देर इज अ प्रॉब्लम. There is a immediate support at 765 767. So ये stock लेने का है. This stock one can buy when it goes below, because it is out, technically it is very strong now. 765 के ऊपर, as long as it looks good. So any opportunity above 765 it looks good. But इसके नीचे बंद हो गया या गैप डाउन, इस गैप के, ये गैप है यहाँ पर, किसी भी दिन ये अगर गैप डाउन खुलता है, देन अवॉइड दिस स्टॉक अंटिल दैट गैप इज नॉट फिल्ड एंड स्टार्ट्स गोइंग अप, देन इट बिकम्स वेरी डेंजरस. सो राइट नाउ हमने डेली वीडियोस में बार बार बोला था कि इसमें क्या हो सकता है. इसमें यही हो सकता था कि इट हैज टू कंसोलिडेट, और ये काफी कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पर. सो नाउ इट सर्टन पॉइंट इट विल बिकम अ गुड लॉन्ग ट्रेड. इन्फोसिस इट फाउंड रेजिस्टेंस, लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया, बट ये सपोर्ट लाइन है यहाँ पर, और ये इनसाइड कैंडल है लास्ट वीक की. सपोर्ट लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, 1665 मार्च लाइन प्लस आपका मंथली सपोर्ट, मंथली गैन ट्रेंड चेंज पॉइंट दोनों आ रहा है. द ओनली थिंग इज इट इज इनटू न्यूट्रल जोन. सो इसको इमीडिएटली जल्दी से वापस कर्ल अप होना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये न्यूट्रल से बेरिश हो गया तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट कैन कम डाउन ऑल द वे टू 1475. एक छोटा रेजिस्टेंस, एक छोटा सपोर्ट मिलेगा इसको 1600 अराउंड, बट द बिग लाइन इज कमिंग एट 1480. अगर ये अगर ये खराब हो गया ऑन द वीकली चार्ट, अभी तो लग रहा है कि इट विल फाइंड अ सपोर्ट, बट बिलो दिस कीप अ आई, 1650 के नीचे खराब हो जाएगा. ITC, I'm stopping this now to do the study again. But overall लगता है कि it will find a support at 220 zone. ये जहां से चला वापस वहीं आ गया. It was good. We timely exited. हमारा time और price दोनों आया था. So it was good trade. अभी overall ये जब तक 220 के ऊपर है, it looks okay. Stochastics already bearish zone में आ गए, which is not a good sign. तो अगला हफ्ता it has to cross 220, 228 to regain the strength. कोटक बैंक क्वार्टरली लाइन के ऊपर चला गया, यूरानस लाइन पे रेजिस्टेंस आया. नाउ मार्स लाइन इज द लाइन वेयर इट कैन फाइंड अ सपोर्ट 2020. एंड इफ यू रिमेंबर, हमारे डेली चार्ट से 2010 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है, उसके नीचे बहुत बड़ी मंदी में आ जाएगा. सो वॉच दिस. Larsen, my view remains bullish for long time, and it has broken all the line. But ये अभी यूरानस लाइन के ऊपर बंद है तो ठीक है, बट ये क्वार्टरली लाइन पे चला गया तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशन होना चाहिए. इट मे गिव सम काइंड ऑफ करेक्शन. बट ओवरऑल अगर इफ ये रैली कंटिन्यू करता है, बिकॉज क्वार्टरली लाइन इज अ बिग लाइन, हमने पास्ट में देखा है मार्केट कैन रिमेन अबव क्वार्टरली लाइन फॉर लॉन्ग टाइम. सो डेली और वीकली चार्ट से समझ के we should trade, and I think 2000 is a level which is it is looking for. So Reliance डेंजर में है 2565 के नीचे. लास्ट वीक भी शायद मैंने बोला था कि ये मार्स लाइन से पलटी खा गया है, मार्स लाइन पे इसको सेलिंग आया है, और ये यहाँ पर क्वार्टरली लाइन के भी नीचे आ गया है. तो इट लुक्स सर्टन, इट लुक्स दैट इट वांट्स टू कम टू 2380 और मे बी 2350 लेवल, वहां पर दैट मे बी अ गुड बाय. लास्ट टीसीएस हम लोगों का मंदी का व्यू था. नाउ इट इज होल्ड द दिस इंपॉर्टेंट लाइन हियर. कैन यू सी दैट? ये लाइन यहाँ पर दिख रही है, और ये जो है आपका मंथली सपोर्ट है, तो दोनों पे सपोर्ट लेके पलटा है. स्टोकेस्टिक्स बेरिश जोन में है, बट स्टोकेस्टिक्स कर्ल डाउन हो गए हैं, और पास पे देखिए इट डजंट गो टू फार ऑन द मंदी. सो अंटिल की स्टोकेस्टिक्स यहाँ से नीचे टूट जाए, व्हाट लेवल इज दिस? दिस इज अ 44. तो ये 44 के नीचे स्टॉकेस्टिक्स आए थे, लेकिन परसों का लेवल, यस परसों का लेवल 39 है. ये थोड़ा सा एक डेंजर साइन है ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट. तो हाउ यू ट्रेड दिस? दो माय बायस इज बुलिश ऑन दिस, बट ये अगर 3465 तोड़ता है, then definitely it is going down maybe to 3100, 3280 and 3100. So ये ओवरऑल हम कैश का वीकली ओनली हैवीवेट्स का एनालिसिस करते हैं. तो ये आज एवरी वीक आई डू, आज छुट्टी का दिन था, सो आई थॉट लेट्स डू दिस, यूटिलाइज दिस टाइम एंड गिव ऑल यू सब्सक्राइबर
good analysis on the weekly charts on the first day of this Indian New Year based on the Diwali. So wish you all happy Diwali, a superb, successful, profitable, great New Year. Thank you for watching. Thank you for subscribing. Thank you for spreading to your friends. And I'm grateful to it. Uh, Stay safe, stay healthy, manage your risk properly. That is the only thing which can save you in this market if you want to remain for long. Other than that, nothing will help. So manage your risk. That is my mantra for you. So thank you once again. Stay healthy, stay safe. Thank you.